Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. But hopefully you will be doing good, enjoying best of your spirits, and having a jolly company at home. So, as far as our reading is concerned, we had completed Unit 19 last time, and the title of that unit was Drug Abuse in the Youth of Pakistan. So, our today's task is we have to start a new unit, unit number 20, that is how to take job interviews. Before going to the unit, I'd like to explain some things. Keep in mind one thing that we are missing three exercises. Okay, we have three exercising missing. ठीक है, इसका हमने बेटा MCQs वगैरह जो भी है एट द एंड वो मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा और साथ साथ में मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस की भी नोट्स भेज रहा हूँ. जस्ट गो थ्रू देम. ओके, और इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, कि आपकी असेसमेंट क्या होगी. सो ऐसे जैसे सीक्वेंस में मैं भेज रहा हूँ आपको, आप इसी तरह नोट्स को याद कर लें. इसी सीक्वेंस से यू हैव टू गेट इट फोटोकॉपीड एंड जस्ट पुट इट इन योर फाइल. So let's come to our today's task, that is Unit 20, how to take a job interview. But previously we were reading lessons. Okay, this is something practical. We have to learn the things practically. As you know that after this you have to take step into your practical life. So regarding your practical life, you have to take interviews, you have to go for job, you would have job hunts, you would have different interviews for your admission, for your thesis, for your dissertations, all the things. And for that perspective, he has given us some suggestions, okay, some advices that how to take a job interview or any interview. It can be put to the general instances, that how to take an interview में what things count, what things are important, what matters a lot, what you should know, how to take the interview, what are the things you have to keep in mind, okay, and how you have to take your stance, and how you have to answer, what things you should prepare, and how you'll streamline yourself for a specific job interview. What are the types of interviews, how what are the things interviewers have in their mind. These are all the things he'll discuss in this lesson. So बेटा इंटरव्यू के लिए हमने ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है. अब क्या कहता है, ये हमारी उस प्रैक्टिकल नॉलेज की स्किल्स को पॉलिश करने के लिए दिस लेसन इज़ मेंट फॉर. ओके, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ बुकिश थिंग. ये हमने प्रैक्टिकली चीज़ें सीखनी हैं. ठीक है, दिस इज़ समथिंग प्रैक्टिकल. वो आपको क्लूज, हिंट्स, एडवाइजेज या आपको सजेशंस दे रहा है. यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, इफ़ यू कीप दिस इन योर माइंड, इट विल बी हेल्पफुल इन एंटायर ऑफ योर लाइफ. सो हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू. कहता है किस तरह आपने एक जॉब इंटरव्यू देना है, किस तरह आपने एक जॉब इंटरव्यू को टैकल करना है, किस तरह उसको मैनेज करना है. दिस unit is also simplified by Professor Wahidullah. ठीक है, he says interview is a vital component of hiring process. बेटा कहता है इंटरव्यू जो होता है ये एक बड़ा अहम, वाइटल, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कंपोनेंट, उनसर होता है, पार्ट होता है, हिस्सा होता है. किसका? ऑफ हायरिंग प्रोसेस. जब आप काम के लिए लोगों की हायरिंग करते हैं, उनको काम पे लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले ही इंटरव्यू जो है, यानी आपको कोई भी जॉब हासिल करने से पहले, किसी काम पे हायर होने से पहले इंटरव्यू जो है, इट काउंट्स अ लॉट. ये बड़ा अहम एक उनसर है, ये एक बड़ा अहम स्टेप है, कंपोनेंट है इस सारे प्रोसेस का. एज़ यू नो, जैसा कि हमें बेटा ये प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, एज़ यू नो व्हेन एवर सम वैकेंसीज आर एडवर्टाइज, उसका एक प्रोसेस होता है. सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, फिर टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर फाइनल लिस्ट लगती हैं. ठीक है, सो ये एक सारा प्रोसेस है, एंड इंटरव्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. सो दैट्स वाई ही इज सेइंग हायरिंग प्रोसेस. किसी को भी हायर करने के लिए वो जो सारा प्रोसेस होता है उसमें इंटरव्यू का है, इसकी बड़ी वेटेज है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है.
It enables the employer to determine if an applicant's skills, experience and personality meet the job's requirements. कहता है इट enables the employer, अब इसका फ़ायदा एम्प्लॉयर जॉब देने वाले को क्या होता है, काम पे रखने वाले को क्या होता है, मालिक को क्या होता है, एम्प्लॉयर को क्या होता है कि इट enables the employer, ये एम्प्लॉयर्स को इस काबिल बनाता है टू डिटर्मिन, ताकि वो अंदाज़ा लगा सकें, ये जांच सकें, ये डिटर्मिन कर सकें इफ़ एन एप्लीकेंट स्किल्स, कि ये जो एप्लीकेंट है, ये जो इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए, इस काम के लिए आ रहा है, उसकी स्किल्स जो हैं, उसकी सलाहियतें जो हैं, एक्सपीरियंस, उसका जो तजर्बा है, एंड पर्सनैलिटी, और उसकी जो शख्सियत है, मीट द जॉब्स रिक्वायरमेंट, क्या ये इस पेशे की के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनसे मिलती हैं, यानी जो चीज़ें इस पेशे के लिए उसकी पर्सनालिटी में, उसकी स्किल्स में और उसके एक्सपीरियंस में होना चाहिए, क्या वो उसके पास हैं? ओके, एम्प्लॉयर्स कंडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यूज सच एज बिहेवियरल इंटरव्यूज, केस इंटरव्यूज, ग्रुप इंटरव्यूज, फोन एंड वीडियो इंटरव्यूज, ऑनलाइन इंटरव्यूज, दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। अब बेटा हमें बताता है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इंटरव्यू इज़, ठीक है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इट्स वर्थ, इसकी वर्थ क्या है, फिर बताता है इससे एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा होता है, उन्हें किन चीज़ों को जांचने में आसानी होती है, देन ही डायरेक्टली डाइवर्जेस ऑन टू द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़, वो हमें फिर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ बताता है। कहता है एम्प्लॉयर्स कंडक्ट, कहता है एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, जो मालिकान होते हैं, वो मुख्तलिफ इकसाम के, डिफरेंट टाइप्स के जॉब इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। अच्छा, उनमें कौन से हैं? सच एज बिहेवियरल इंटरव्यूज़। अब बेटा बिहेवियरल इंटरव्यू क्या होता है? अ बिहेवियरल इंटरव्यू इज़ अ टाइप ऑफ, इज़ अ काइंड ऑफ इंटरव्यू इन विच दे डिटर्मिन, दे नो, दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट बिहेवियर वन हैड इन द प्रीवियस जॉब्स, इन द प्रीवियस टाइम्स। वो देखते हैं कि प्रीवियसली जहाँ पे इसने काम किया है इसका कैसा बिहेवियर था, ये बहुत ज़्यादा रूड तो नहीं था, ये कैसा लोगों से मिंगल कर सकता है, मिल सकता है, अच्छा सीरियस है या नॉन सीरियस है, अच्छा इसकी स्किल्स कैसी पॉलिश हैं, दिस इज़ बिहेवियर, किसी का बिहेवियर, रवैया जांचना, एज इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देन द सेकेंड वन इज़ केस इंटरव्यूज़। बेटा सेकंड जो चीज़ हमें देता है वो कहता है कि केस इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। अब व्हाट इज़ केस इंटरव्यू? केस इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है बेटा जिसमें आपको कोई भी आपके रिलेटेड बिजनेस से, आपके रिलेटेड फील्ड से एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो, एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो दिया जाता है, एंड यू आर asked to resolve it, to settle this dispute, this problem। यानी एक डिफ़िकल्ट आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और उसको आपसे पूछा जाता है कि आप अगर, लेट्स सपोज दिस इज़ द सिचुएशन, हाउ यू गेट आउट ऑफ दिस, आप किस तरह इससे बाहर आएंगे। ये क्या जानने के लिए? उसकी एनालिटिकल स्किल्स जानने के लिए कि कितना ज़्यादा एनालिटिकली ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये केस इंटरव्यूज़ होते हैं। देन द थर्ड इज़ ग्रुप इंटरव्यूज़। अब ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है बेटा? वेयर कंटेस्टेंट्स आर ऑन द सेम टेबल, जहाँ पे आपके कॉन्टेस्टेंट्स जो हैं वो एज अ ग्रुप में बैठे हुए होते हैं। अब इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, और इंटरव्यूई जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, ठीक है, आमने सामने होता है। अब वो इस ग्रुप से, यानी ग्रुप 5, 6, 7 कॉन्टेस्टेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, अब वो आते हैं इंटरव्यू टेबल पे बैठते हैं, चेयर्स पे अपने, उनसे वो इंटरव्यू करता है। अच्छा, उसमें क्या जाना जाता है? इस ग्रुप इंटरव्यू में बेटा ये देखा जा सकता है क्या ये जो इंटरव्यू है ये टीम वर्क कर सकता है, इसमें दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली क्या इसकी स्किल्स हैं, क्या इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या इसकी वीकनेसेस हैं, इन सारी चीज़ों को डिटर्मिन करने के बाद, पॉइंट आउट, हाईलाइट करने के बाद, देन दे सेलेक्ट द बेस्ट बिफिटिंग कैंडिडेट फॉर दैट पोस्ट। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द focus of job group interview. Then there comes phone interview. As we know, phone interview is simple. The interview which we give on phone. आप देखते हैं कि sometimes हम फ़ॉरन के लिए इंटरव्यू देते हैं, it is sometimes on phone और on video call. ये दोनों इंटरव्यूज सेम हैं। अब फ़ोन पे आपको एक शख्स फ़ोन करते हैं, वहाँ पे वो क्वेश्चनिंग करके आपका एनालिसिस कर लेते हैं। या ऑनलाइन इंटरव्यू इस वजह से होता है कि जब पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, टू कम ऑन द स्टेज, जब आप उस जगह पे उस इंस्टीट्यूशन में पर्सनली या फिज़िकली यू कैन नॉट गो देयर, देन
दे फैसिलिटेट द इंटरव्यूज विद दिस ऑप्शन ऑफ फ़ोन और वीडियो इंटरव्यूज़। अब बेटा वीडियो इंटरव्यूज़ जैसे हम फ़ॉरेन में कहीं पे एडमिशन लेते हैं तो हमारे वीडियो इंटरव्यूज़ होते हैं, या एज़ इन दिस सिचुएशन ऑफ पैंडमिक हम मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हायरिंग कैसे करें, बाय वीडियो इंटरव्यूज़, बाय कंडक्टिंग वीडियो इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हम भी इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ दैट ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अस। कहता है ये कितनी टाइप्स हमें बताता है, 1 बिहेवियरल इंटरव्यू, 2 केस इंटरव्यू, 3 ग्रुप इंटरव्यूज़, 4 फ़ोन और वीडियो इंटरव्यूज़, ठीक है। ये 4 इंटरव्यूज़ की टाइप्स हमें बताता है। हैव यू गॉट द पॉइंट? ओके, यानी इसमें हमें इंटरव्यू की वाइटैलिटीज़ की वर्थ के बारे में बताता है, फिर इसका जो एडवांटेज एम्प्लॉयर के लिए वो हमें बताता है। देन बेटा ही ट्रिकल्स डाउन, ही मूव्स ऑन टू द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। Okay, let's come to the next paragraph. What he says further: interviewers use behavioral based interviews to know about the personality trait, behavior and attitude of the aspiring candidate. अच्छा, कहता है इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं बेटा, वो कहता है ये बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यूज़ इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक बिहेवियरल इंटरव्यूज़, ये जो टाइप है ये यूज़ करते हैं टू नो, ताकि वो जान सकें अबाउट द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उस शख्स की जो शख्सियत है उसमें जो खूबियाँ हैं उनके बारे में। ट्रेट्स कहते हैं खूबियों को, ठीक है। बिहेवियर उसके रवैये के बारे में। एंड एटीट्यूड ऑफ द एस्पायरिंग कैंडिडेट, कहता है ऐसा शख्स, ऐसा कैंडिडेट जो कैसा हो, एस्पायरिंग यानी जो एस्पायरिंग कैंडिडेट हो, मीनिंग टू से कि बेटा वो एटीट्यूड चेक करते हैं, उसका रवैया देखते हैं कि जो इस पोजीशन के लिए, इस पोस्ट के लिए एस्पायरिंग ख्वाहिशमंद जो कैंडिडेट होता है उसका, यानी बिहेवियरल इंटरव्यूज़ का जो लॉजिक है, जो मंतक है, ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि उसकी शख्सियत के बारे में जाना जा सके, उसके रवैये के बारे में जाना जा सके और देखा जा सके उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव है, या वो बड़ा प्राउडी सा है, कैसा एटीट्यूड है उसका। इन चीज़ों को जानने के लिए इंटरव्यूअर्स दे यूज़ बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यूज़। The idea is that past behavior predicts how a person will act in the new job. अब बेटा इसका जो आगे बता रहा है, इसके फंक्शनैलिटीज़ बता रहा है। Why did they conduct this behavioral interviews? अब क्या कहता है, द आइडिया इज़ दैट, कहता है इसका मकसद, इसका आइडिया ये होता है कि दैट पास्ट बिहेवियर, कि माजी में आपका जो रवैया था, प्रिडिक्ट्स, ये पेशन गोई करता है, ये बताता है हाउ अ पर्सन विल एक्ट इन द न्यू जॉब, कि कोई शख्स जो है वो आगे नई जॉब में, नई मुलाजमत में किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से कैसा उसका रवैया होगा। यानी आपकी माजी में आपका जैसा रवैया रहा है, माजी में आपका जैसे बर्ताव रहा है, वो आपके फ्यूचर को भी आगे इफ़ेक्ट करता है, उसके आने में के बारे में भी बताता है। In this type of interview, a person won't get many easy yes or no questions. अब कहते हैं इस किस्म के, यानी बिहेवियरल इंटरव्यू जो है, इस जानरा में, इस टाइप में, इस किस्म के इंटरव्यू में जो कैंडिडेट होता है उसे ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं मिलते जिसका उसने येस या नो में आंसर करना होता है, बल्कि ही हैज़ टू डिफाइन, ही हैज़ टू डिस्क्राइब, ही हैज़ टू एक्सप्लेन द थिंग्स। सो व्हाट हैपन्स, व्हाट ही सेज नेक्स्ट, एंड इन द मोस्ट केसेस, और कहता है ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, ज़्यादातर मामलात में, हालात में, ही और शी नीड्स टू आंसर विद एन एनेक्डोट अबाउट द प्रीवियस एक्सपीरियंस। एनेक्डोट कहते हैं बेटा स्टोरी को। कहता है इनमें बिहेवियरल इंटरव्यूज़ में मोस्टली वो येस या नो में आंसर नहीं करता, बल्कि माजी की, ही और शी नीड्स टू आंसर, किसी भी लड़के या लड़की को, मेल या फीमेल को आंसर देने के लिए कोई कहानी का हवाला देना पड़ता है, कोई वाक़या बताना पड़ता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का। इज इट क्लियर? सो व्हाट ही सेज, इंटरव्यूज in which the interviewer giving the candidate a job related scenario and asking to manage the situation is called case interview. So he has now wrapped up the first type. अब उसने पहली टाइप जो है बेटा वो ख़त्म कर दिया है, that was behavioral interview. अब वो आता है नेक्स्ट किस पे,
हमारे पास केस इंटरव्यू की जो नेक्स्ट टाइप है उस पे आता है, यानी बिहेवियर इंटरव्यू में आपने कहानी एक सुनानी, आप बताते हैं कि फ़लाँ मैं इस इदारे में था, ऐसा काम हुआ तो मैंने ऐसे ऐसे उसको टैकल किया, उसको मैंने ऐसे यानी कि सिंप्लीफाई किया, सेटल किया मामलात को। वो इससे क्या आपका चेक करते हैं बिहेवियर, हाउ सीरियस यू आर टुवर्ड्स योर जॉब। ठीक है, अब आता है बेटा केस इंटरव्यू। कहता है इंटरव्यूअर्स इन विच द इंटरव्यूई गिविंग द कैंडिडेट अ जॉब रिलेटेड सिनेरियो एंड आस्किंग टू मैनेज द सिचुएशन इज कॉल्ड केस इंटरव्यू। अब ये उसकी डेफिनेशन देता है, कहता है ऐसा इंटरव्यू कि जिसमें इंटरव्यूअर जो होता है वो कैंडिडेट से, वो कंटेस्टेंट से एक जॉब रिलेटेड उसको सिनेरियो देता है, एक मंजरनामा देता है और कहता है कि एंड आस्किंग टू मैनेज द सिचुएशन इज कॉल्ड केस इंटरव्यू। और उससे कहता है कि इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो व्हाट विल यू डू, आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसी जो इंटरव्यूज हैं, जैसे हम नहीं कहते केस स्टडी ले लेते हैं जी, एक जी हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ को समझा रहे होते हैं हम, किसी कॉन्सेप्ट को साइंसेज में हम कहते हैं या इंग्लिश में भी हम कहते हैं केस स्टडी ले लेते हैं। केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक सिनेरियो ले लेते हैं, उसके बराबर में, उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ चीज़ दूसरों को समझा देते हैं। सो केस इंटरव्यू क्या होता है कि जब इंटरव्यूअर किसी भी कॉन्टेस्टेंट को एक सिनेरियो देता है एंड आस्क हिम टू मैनेज द सिचुएशन, टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू सेटल द प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड केस इंटरव्यू। नाउ ही फर्दर डिफाइंस इट, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज are most often used to management, consulting and investment and executive positions and require the applicants to show off analytical ability and problem solving skills. अब बेटा ये जो केस इंटरव्यूज़ हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये किस किस्म की पोस्ट के लिए इस्तेमाल, ये मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहता है दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज़, इस किस्म के जो इंटरव्यूज़ होते हैं आर मोस्ट ऑफन यूज, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं फॉर द मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जो इंतज़ामी उमूर को जो बॉडी देखती है, जो लोग देखते हैं, उनकी हायरिंग के लिए ये केस सिनेरियोज यूज़ होते हैं, केस इंटरव्यूज़ यूज़ होते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट, या जो बेटा एचआर में एचआर के इंटरव्यूज़ होते हैं, जो उमूर तमाम मामलात को देखते हैं लोग, एचआर जो होता है, या जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का जो पैसों से जिनका रिलेशन होता है, उनके लिए, उनकी हायरिंग के लिए ये केस इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। और इसके बाद एग्जेक्टिव पोजीशंस, नाज़िम उमूर, यानी ऐसे लोग जो किसी इदारे के तमाम मामलात को देखते हैं, एग्जेक्टिव, नाज़िमुल उमूर उर्दू में कहते हैं, ऐसी पोजीशंस के लिए, ऐसी पोस्ट के लिए दे कंडक्ट टू हायर एप्लीकेंट थ्रू केस इंटरव्यूज़। और वो चेक इसमें क्या करते हैं, एंड रिक्वायर द एप्लीकेंट्स टू शो ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी। इससे जो एप्लीकेंट्स होते हैं बेटा, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उनकी तज्ज़ियाती एबिलिटी, सलाहियत को देखा जा सकता है कि वो किस तरह तज्ज़िया करते हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, टू नो देयर एग्जैक्ट एक्सपर्टीज़, उनकी एक्सपर्टीज़ को, उनके तजर्बे को, उनके एनालिटिकल एबिलिटीज़ को जांचने के लिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि ये अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हाउ मच कॉम्पिटेंस, हाउ मच कॉम्पिटेंट दे आर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए वो केस स्टडी देते हैं कि आपके ऊपर ये हालात आ गए हैं जी, आप इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, आप कैसे इससे निकलेंगे, दिस इज़ केस स्टडी। ठीक है बेटा, यानी ये तीन किस्म की जो हायरिंग है उसके लिए, एक तो जो लोग, जिन लोगों को वो इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बेटा जो हायरिंग होती है, उसमें इंटरव्यू की टाइप कौन सी यूज़ की जाती है, केस स्टडी यूज़ की जाती है। अच्छा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तमाम जो इंतज़ामात करते हैं लोग, जो कंसल्ट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं इन चीज़ों को, यानी हर एक को उसकी ड्यूटी असाइन करना। अच्छा, लेट्स सपोज समटाइम्स आप एक इदारे में हैं, वहाँ पर आप एक शख्स को असाइन करते हैं ड्यूटी, आप कहते हैं जी ये आपकी, वो कहता है मैं नहीं मानता, मैं ये ड्यूटी करता ही नहीं हूँ। सो वहाँ पे ये ऐसे लोग हायर किए जाते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है टू परसुएट समवन, कि वो उन्हें कायल करते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या है, एग्जेक्टिव बॉडी, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो होती हैं, जो एमडी होता है, एग्जेक्टिव बॉडी जो होती है, इनकी हायरिंग के लिए केस स्टडी यूज़ की जाती है। ओके, अब ये सेकंड भी जो इंटरव्यू था, ये भी हमारी टाइप कंप्लीट होगी। सो हियर ही कम्स टू थर्ड टाइप, इंटरव्यूज दैट रिक्वायर टू गिव एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स आर कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज और जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यूज। अब ये एक और हमें कैटेगरी बेटा बताता है।
पहले वो क्या कर रहा है बेटा, दिस इज़ इंट्रोडक्शन। अब वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि इंटरव्यू होता क्या है, कितनी इकसाम के इंटरव्यूज़ होते हैं और किस किस टाइप में क्या क्या चीज़ें जांची जाती हैं, डिसाइफर की जाती हैं, उनको हाईलाइट या पॉइंट आउट किया जाता है। ठीक है, सो कहते हैं इंटरव्यूज़ दैट रिक्वायर टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। कहते हैं इंटरव्यूज़, वो इंटरव्यू दैट रिक्वायर, जिनमें ज़रूरत होती है टू गिव एग्जाम्पल्स, मिसालें देने की, ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। यानी अब देखें हर एक जो फील्ड है उसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अब ऐसे इंटरव्यू जिनमें एक किसी ख़ास स्किल की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं आर कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़। उन्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़ कहा जाता है। व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी वी मीन द नॉलेज विच यू हैव इन योर माइंड, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़। तो बेटा इन्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़ कहा जाता है। कॉम्पिटेंसी कहते हैं नॉलेज, आपके माइंड में एक नॉलेज, आप कहते हैं आई एम कॉम्पिटेंट, आई हैव गॉट द कॉम्पिटेंसी। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉम्पिटेंसी, एक होती है परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंसी क्या होती है? जो नॉलेज आपके माइंड में होता है, जो आपने सीखा होता है, जो आपने पढ़ा होता है, आपके माइंड में है ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब कॉम्पिटेंसी तो वो होगी आपके माइंड का नॉलेज। ठीक है, अब परफॉर्मेंस क्या है? जो प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, यानी एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज फॉर जस्ट फॉर इंस्टेंस, एक स्टूडेंट है, उसको सारी चीज़ें आती हैं, ये तो उसके माइंड का नॉलेज है ना बेटा, उसके माइंड में है। अब परफॉर्मेंस कब होगी? व्हेन ही विल प्रैक्टिकली डू समथिंग, जब वो टीचर को सुनाता है या वो जब लिख के रिटन फॉर्म में देता है, सो दिस इज हिज परफॉर्मेंस, वो उसकी परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, हैव यू गॉट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़? यानी जब उनका नॉलेज चेक किया जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़ में नॉलेज चेक किया जाता है। और जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ होते हैं, यानी जॉब स्पेसिफिक क्या होगा? किसी खास जॉब के लिए आपको सर्टन स्किल्स रिक्वायर होती हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचिंग के लिए आपने शख्स हायर करना है तो उसकी सर्टन स्किल्स रिक्वायर्ड है। एक तो उसका नॉलेज आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब सर्टन जॉब स्पेसिफिक स्किल्स क्या हैं? कि उसकी आवाज़ अच्छी हो, उसको यानी आवाज़ ऊंची हो, सब लोगों को वो आसानी से समझा सके। सो किसी खास रिलेटेड जॉब से जो रिलेटेड स्किल्स होती हैं उनको जब जानते हैं तो उसके लिए हम कौन सा वे यूज़ करते हैं बेटा? कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़। इन सच इंटरव्यूज़, अब इसकी आगे फर्दर डिटेल्स देता है। इन सच इंटरव्यूज़ the interviewers will ask questions that will help them determine if a person has the knowledge and skills required for the specific job। कहता है इस किस्म के कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़ में जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि जिनकी मदद पे वो ये तय कर सकें, ये जान सकें, ये डिटर्मिन कर सकें इफ़ अ पर्सन हैज़ द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक जॉब। कहता है इस किस्म के इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूज़ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनमें वो ये जान सकें कि इस खास ये जो स्पेसिफिक जॉब है, ये जो स्पेसिफिक पोस्ट है, इसके लिए जो स्किल्स या जो नॉलेज रिक्वायर है क्या वो इस शख्स में है। Is it clear beta? So this is the function, this is the main, these are the pinpoints, this is the crux of competency based interviews। Okay, I think it's sufficient for today beta। What you have to do now, I'm gonna assign you your homework, that is first of all you have to analyze it critically। Okay, critically analyze it। Must keep in mind कि you have to learn these things for your entire life। If you have gone through these things just for the sake of paper orientation, paper solution, that won't be sufficient, because if you will do so its purpose will be diminished, it will be deceased, इसका मकसद ही फोत हो जाएगा। These are the lifelong things। ये बेटा वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो अपनी सारी ज़िंदगी में आपको काम आएंगी। फर्स्ट थिंग आपने पहले ही देखना है कि कहता क्या है राइटर हमें इंट्रोड्यूस कैसे करवाता है, फिर इसकी टाइप्स क्या हैं। अब हर एक टाइप को आपने देखना है। यू शुड नो, यू शुड हैव ऑन योर फिंगर टिप्स ऑल द टाइप्स ऑफ दीज इंटरव्यूज़। अच्छा, उसके बाद बेटा इसमें जो पॉसिबल आपके क्वेश्चन आंसर, सॉरी नॉट क्वेश्चन आंसर, MCQs बनते हैं, यू हैव टू जॉट दीज डाउन। आपने वो अपने पास लिखने हैं, आपने अपने पास राइट डाउन करने हैं और अपने पास उनका एक रजिस्टर मेंटेन करना है। ठीक है बेटा, if you have any confusion, if you face any problem, you may ask me in the comments, I'll be there to help you। Till the next lecture, take care of yourself। Allah Hafiz।